Next question. An investor has made following investments. तो एक इन्वेस्टर ने ये तीन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है. अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 50,000, 30,000 और 20,000. हर एक सिक्योरिटी का बीटा दे रखा है. यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमको 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आई वांट यू टू आंसर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स. पहला क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द करंट बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. Please write down answer. Calculation of beta of portfolio. Investment is made like this. Investment in security A, security B, security C. Amount of investment. It is 50,000 rupees, 30,000 rupees, and 20,000 rupees. Weight or proportion in which investment is made is total 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है. 50,000 in security A out of 1 lakh. So weight of security A is 0.50, 0.30 for the second one, that is 30,000 divided by 1 lakh, and 0.20 for the last one, that is 20,000 divided by again 1 lakh. Total is 1. So this is the proportion in which investment is made. Multiplying with the respective beta, 1.20, 1.50 and 2. Weight into beta. So 0.50 into 1.20, 0.60. 0.30 into 1.50, that is 0.45. And 0.20 into 2, that comes to 0.4. So 0.6 plus 0.4 is 1. 1 plus 0.45 is 1.45. So beta of the portfolio is 1.45. That is answer for the first part of the question. Second part of the question थोड़ा सा नया है, but still I want to try to see that say how many students can answer this. What amount of the funds to be transferred to risk-free security from existing portfolio so as to reduce beta of the portfolio to 1.015? Try to give answer for this question in the chat box. Let us have understanding that say how to make calculation of this answer. Dear students, answer for the second part of the question will be found like this. Everybody is requested to pay attention. Answer for the second part of the question. In that, investment in existing portfolio and in a risk-free security. Wait. Once we are going to transfer some amount from the existing portfolio to the risk-free security, तो existing portfolio का weight क्या होगा वो हमको पता नहीं है. So I'm assigning x variable to it. So this would be 1 minus x. Beta. Existing portfolio का beta already है हमारे पास. It is 1.45. रिस्क फ्री का बीटा कितना है 0. वेट इंटू बीटा, सो 1.45x and this is 0. Based on that, so the beta of the portfolio can be calculated. जो हमको चाहिए क्वेश्चन में दे रखा है 1.015. Now we can solve this equation to calculate the value of the x, that is the weight.
तो कैसे होगा फ्रेंड्स, 1.45x plus 0 is equal to 1.015. Friends, we have taken the beta of the risk-free security 0 in absence of an information. 1.45x is equal to 1.015. So x is 1.015 divided by 1.45. That comes to 0.70. यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा 70% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग रखना पड़ेगा और 30% हमको शिफ्ट करना पड़ेगा. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन प्रिसाइजली, amount of funds to be transferred to risk-free security is 0.30, that is 30%. रुपीज 30,000. सर 30,000 कैसे है, एग्जिस्टिंग हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख का. ये जो हमारा 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है उसमें से 30,000 क्या किया जाएगा, रिस्क फ्री में शिफ्ट किया जाएगा. सो 1 लाख इंटू 30%. ना फ्रेंड्स, ये 30,000 रुपीज हमको रेंडमली सिलेक्ट नहीं करना है. ये 30,000 रुपीज हमको क्या करना है फ्रेंड्स, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट का प्रपोर्शन होगा ना, उसी में से विड्रॉ करना है. यानी क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, ये जो 50,000 है ना उसमें से 30% निकालेंगे, ये 30,000 में से 50 दैट इज 30% निकालेंगे, और ये 20,000 में से 30% निकालेंगे. सो क्या होगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड दैट रिवाइज द beta of portfolio. Investment in A, B, C एंड RF, ऐसा करके हो जाएगा. ये जो 50,000 है, 50,000 में से हम लोग 30% डिडक्ट करेंगे. ये 30,000 रुपये है, उसमें से अगेन हम लोग 30% डिडक्ट करेंगे. और ये जो 20,000 है उसमें से अगेन हम लोग 30% डिडक्ट करेंगे. और ये इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, 30,000 रुपये. सो 50,000 माइनस 30%, that comes to 35,000. 30,000 minus 30%, that comes to 21,000. 20,000 minus 30%, that comes to 14,000. Now you can see that say 35,000 plus 21,000 plus 14,000 plus 30,000. Again it comes to an amount of rupees 1 lakh. क्योंकि हर एक में से जो पैसा निकाला हमने से exit that is risk free में इन्वेस्टमेंट किया है. Now this is the amount. Now अगर हम लोग अभी वेट कैलकुलेट करेंगे तो वेट क्या हो जाएगा, दिस विल बी 0.35, दिस विल बी 0.21, दिस विल बी 0.14 एंड ऑफ कोर्स दिस इज 0.30. यानी ये तीनों का मिला के वेट क्या हो जाएगा, ये तीनों का मिला के वेट हो जाएगा 0.7. अच्छा, उसको रिस्पेक्टिव बीटा के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेट अस सी. फर्स्ट सिक्योरिटी का बीटा है 1.2, this is 1.5, this is 2 and this is 0. So क्या किया जाएगा, वेट इंटू बीटा. सो 0.35 इंटू 1.20, that comes to 0.42. Then 0.21 into 1.50, that is 0.315. Then 0.14 into 2, 0.28, और लास्ट में क्या होगा, 0. ठीक है ना, एनीथिंग इंटू 0 विल बिकम 0. नाउ बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो चेक करते हैं. 0.42 प्लस 0.315 प्लस 0.28, दैट कम्स टू 1.015. ऐसा करके हम लोग बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं.
दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। बेसिकली हमारा आंसर जो है ना वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा 30,000 रुपए से। बट एज अ स्टूडेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड एट से 30,000 रुपए ना रेंडमली हम लोग कोई भी सिक्योरिटी में से नहीं निकालेंगे। हम लोग जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का इंटरनल प्रपोर्शन है ना वो इंटरनल प्रपोर्शन हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उस हिसाब से वी आर सपोज टू withdraw 30,000 rupees to be invested in a risk-free security. So from examination point of view, we are required to write this much answer. First of all, we'll prepare a kind of table like this and then we'll compute 0.70. 0.70 पे हमारा आंसर खत्म नहीं होता है, हमारा आंसर यहाँ पे खत्म होता है कि 30,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपको ट्रांसफर करना चाहिए टू रिस्क फ्री सिक्योरिटी, तब जाके आपका बीटा हो जाएगा 1.015. I request you to give answer for the third part of the question in the chat box. What amount of additional investment to be made in the risk-free security so that the beta of the portfolio reduces to 1.015? Please give answer for the third part of the question in the chat box. Friends, in the third part of the question, हमारा जो बेसिक कैलकुलेशन है ना वो तो सेम ही रहेगा। ये जो 0.7 है ना वहां तक सेम ही रहेगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड केयरफुली। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, रिस्क फ्री सिक्योरिटी एंड टोटल। टोटल इन्वेस्टमेंट अगर 1 रुपए का है तो उसमें से 70 पैसे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का है, 30 पैसे रिस्क फ्री सिक्योरिटी का है। ऐसा प्रोपोर्शन है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको कि हम लोग एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी ये 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए ही रहेगा और ये हमको कैलकुलेट करना है कि हम लोग कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करेंगे। दैट इज व्हाट द क्वेश्चन. So we understand that, say we are required to find the answer like this. 1 lakh into 0.3 divided by 0.7. 1 lakh into 0.3 divided by 0.7. That comes to rupees 42,857. इतना एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. यानी अगेन हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट होगा ए, बी, सी और रिस्क फ्री में. ए में इन्वेस्टमेंट कितना है 50,000, बी में इन्वेस्टमेंट कितना है 30,000, सी में कितना है 20,000, रिस्क फ्री में कितना हो जाएगा 42,857. So the total investment will be 1,42,857. ऐसा हो जाएगा. So 50,000 divided by 142,857. Weight will be 0.35. Weight will be 0.21. Weight will be 0.14. Weight will be 0.30 as we wanted to be. Total will be 1. Multiplying with the respective beta. This is weight, this is beta. Beta is 1.20, 1.50. This is 2 and this is 0. Weight into beta. So 0.35 into 1.2, that is 0.42. 0.21 into 1.5, that is 0.315. Then 0.28 and lastly it is 0. 42 plus 0.315 plus 0.28. That comes to beta of the portfolio 1.015. ऐसा करके हमको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं. ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वी अंडरस्टैंड दैट से वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वेट ऑफ द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो
as 0.70 like this. ऐसा हमने weight of existing portfolio कैलकुलेट किया और उसके बाद we just have to write answer like this, that say the existing portfolio का weight 70% है and that represents 1 लाख रुपये. हम लोग 30% इन्वेस्टमेंट करेंगे रिस्क फ्री में, यानी हम लोग रिस्क फ्री में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे 42,857, जिसकी वजह से we will be having so the beta of the portfolio reduced to 1.015. Just write down one line answer. Investor is advised to make additional investment of rupees 42857 in risk-free security so that beta of portfolio reduces to 1.015. That is what we understand. Fourth part of the question. What an investor can do for increasing beta of the portfolio to 2.61. अगर हमको बीटा इंक्रीज करना है कहां तक 2.61 तक, तो हम इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए. चलो राइट एन आंसर विद द फोर्थ क्वेश्चन. In order to increase beta of portfolio from 1.45 to 2.61, ये 1.45 हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर है. हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में यू कैन सी दैट द बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इज 1.45. investor can enter into one of the following transactions. उसमें लिखो ट्रांजैक्शन नंबर 1. तो दो में से एक, उसमें से मैं फर्स्ट मेथड आपको बता रहा हूं, दैट से इन विच से द इन्वेस्टर कैन एंटर अपॉन. फर्स्ट मेथड में क्या किया जा सकता है, बोरो there are two methods or there are two types of transaction in which we can enter upon. Method number 1 is borrow at risk-free rate of return and invest in existing portfolio. अब हमारा फर्स्ट मेथड या फर्स्ट दैट इज ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, हम लोग बोरो करेंगे एट आरएफ एंड विल मेक इन्वेस्टमेंट एट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. सो इन्वेस्टमेंट इन क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो एंड मैं यहाँ पे स्लैश बोरोइंग लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन स्लैश बोरोइंग. Borrowing will be at RF. Understand carefully. मैंने क्या लिखा है मेथड नंबर 1 में, borrow at RF and invest in existing portfolio.
तो लेट अस अज्यूम दैट से हमने एक्स अमाउंट बोरो किया है और हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितना, 1 लाख प्लस एक्स। तो ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। उसके बेसिस से हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे। इट इज 1 लाख प्लस एक्स, हमारा इन्वेस्टमेंट होगा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में। एक्स अमाउंट हमने बोरो किया था, तो ये अमाउंट हेल्ड हो जाएगा 1 लाख। दिस इज अमाउंट हेल्ड। तो वेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वेट हो जाएगा 1 लाख प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 लाख। ये होगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अगेन 1 लाख। टोटल वुड बी 1 मल्टीप्लाइंग विद द रिस्पेक्टिव बीटा। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का बीटा कितना है, इट इज 1.45। रिस्क फ्री का बीटा कितना होगा, 0। सो क्या किया जाएगा, वेट इंटू बीटा। That is the way we are required to write the weighted average. So it is like 1,45,000 plus 1.45x divided by 1 lakh. This would be 0 because anything into 0 will become 0. And beta of the portfolio should be 2.61. That is the way we are supposed to form the equation. Please write down this equation. So this is the way we will be having so the equation to be formed. So now we will be having so the final values like this: 1,45,000 plus 1.45x divided by 1 lakh plus 0 is equal to 2.61. One lakh 45,000 plus 1.45x is equal to 2.61 into 1 lakh. So this will become 2,61,000 minus 1,45,000 is equal to 1.45x. So 2,61,000 minus 1,45,000. It is 1,16,000 divided by 1.45. That comes to rupees 80,000. That is the way we are supposed to make the calculation. That say 80,000 rupees हम लोग borrow करेंगे, उसको existing portfolio में हम लोग investment करेंगे, जिसकी वजह से beta of the portfolio will be 2.61. अच्छा, इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा वो भी क्लियर है, 50, 30, 20 के प्रपोर्शन में ही। तो इसका मतलब ये होगा कि A, B, C एंड RF कैसे होगा, 50,000 रुपए जो एग्जिस्टिंग है प्लस 80,000 रुपीज का 50%, तो ये कितना हो जाएगा, 90,000। ये 30,000 रुपीज है प्लस 80,000 रुपीज इंटू 0.3, that comes to 24,000. So total हो जाएगा 54,000. This is 20,000 plus 80,000 into 0.20, यानी 16,000 रुपए। So total कितना हो जाएगा, 36,000। हमने RF पे बोरो किया है, यानी वो क्या हो जाएगा, 80,000 नेगेटिव हो जाएगा। So 90,000 plus 54,000 plus 36,000 minus 80,000, यानी आंसर क्या होगा फाइनली, 1 लाख। तो देखो आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने 80,000 रुपीज बोरो किए,
एट RF और उसको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के प्रोपोर्शन में आपने इन्वेस्टमेंट किया। अभी वेट क्या हो जाएगा 0.90, 0.54, 0.36 एंड दिस इज नेगेटिव 0.8। फाइन। और टोटल क्या हो जाएगा 1। यू कैन चेक दैट 0.9 प्लस 0.54 प्लस 0.36 माइनस 0.8। रिस्पेक्टिव बीटा कितना है 1.20, 1.50, 2 और 0। So 0.9 into 1.2 that is 1.08. 0.54 into 1.5 that comes to 0.81. 2 into 0.36 0.72. This is 0. So 1.08 plus 0.81 plus 0.72 that comes to exactly 2.61. यानी आपका बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कितना हो जाएगा 2.61 जो आपको चाहिए। ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 हुआ जिसमें हमने क्या किया हमने बोरो करके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया। नाउ देयर इज एन अनदर मेथड उसको ट्रांजैक्शन नंबर 2 बोलते हैं। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे सेल अ पार्ट ऑफ existing investment and finance the same at RF। ना देखो इसमें क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूं। इन्वेस्टमेंट इन existing portfolio RF, इन्वेस्टमेंट इन स्लैश बोरोइंग ऐसा किया जाएगा। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में हमने इन्वेस्टमेंट जो किया है वो होगा 1 लाख। एक्स अमाउंट हमने क्या किया वापस बोरो किया है एंड अमाउंट हेल्ड विल बी 1 लाख माइनस एक्स। यानी हमने क्या किया फ्रेंड्स पता है कि एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ना उसमें से कुछ पोर्टफोलियो का दैट इज से कुछ प्रोपोर्शन हमने पैसा लाइक विड्रॉ कर दिया। वो जो पैसा है ना वो हमने इन्वेस्टमेंट से ही विड्रॉ कर दिया और उतना ही अमाउंट हम लोग क्या करेंगे वापस बोरो करेंगे और एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अच्छा वेट it is 1 lakh divided by 1 lakh minus x minus x divided by again 1 lakh minus x। Total would be of course 1 beta this is 1.45 and this is 0 weight into beta 1,45,000 divided by 1 lakh minus x this is 0 beta of the portfolio is 2.61। ऐसा करके हमको क्या करना है वी आर रिक्वायर्ड टू सॉल्व द इक्वेशन। सो इट इज 1,45,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख माइनस एक्स प्लस 0 जिसका कोई यूज नहीं है इज इक्वल टू 2.61। सो इट इज 1,45,000 इज इक्वल टू 2,61,000 minus 2.61x. So 2.61x is equal to 2,61,000 minus 1,45,000.
So 2,61,000 minus 1,45,000. That is 1,16,000 divided by 2.61. That comes to 44,444. ऐसा करके हमको x का अमाउंट मिलेगा। यानी हमने क्या किया फ्रेंड्स पता है, हमने 44,444 रुपीज का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो रिडीम किया, उतना ही पैसा हमने वापस बोरो किया और वापस हमने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया। दैट इज द वे से वी आर हैविंग से द रिवाइज्ड स्ट्रेटजी। यानी हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स पता है, 55,556 हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो वुड बी वंस अगेन 0.90, आई एम सॉरी 2.61। तो देखो इन्वेस्टमेंट स्लैश बोरोइंग, in that it is A, B, C and RF। ए में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ए में इन्वेस्टमेंट होगा एन अमाउंट ऑफ 50,000, बी में 30,000, सी में 20,000। पर इस बार देखो हमारा एक्स अमाउंट जो है दैट इज 44,444 नेगेटिव। So this is 55,556 is the amount of investment। तो वेट कैसे होगा फ्रेंड्स पता है, 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 55,556, that comes to 0.90। then this is 0.54, again same 30,000 divided by 55,556 और यहां पे 0.36, 20,000 divided by 55,556 और ये कितना होगा पता है फ्रेंड्स पता है, -0.8। कैसे, 44,444 upon 55,555, $55,556। सो टोटल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस इज द वेट मल्टीप्लाइंग विद द बीटा, इट इज 1.20, 1.50, 2 और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, 0। weight into beta 1.08, this is 0.81, this is 0.72 and this is 0। so 1.08 plus 0.81 plus 0.72, that comes to 2.61। ऐसा करके हम लोग बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन का एग्जामिनेशन में कोई भी जरूरत नहीं है। लेट अस हैव द रिवीजन ऑफ द एंटायर क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में सिंपल बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो पूछा है, जो हमने सिंपल वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसा पूछा है दैट से हमको कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमको कितना अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री में शिफ्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो विल रिड्यूस टू 1.015। तो सिंपल वेटेड एवरेज फॉर्मूला आपने यूज किया और हमने ये कैलकुलेट किया कि हमको 70% इन्वेस्टमेंट एग्जिस्टिंग में रखना चाहिए, यानी 30% शिफ्ट करना चाहिए। तो 1 लाख का 30% कितना होगा, 30,000 रुपए। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, हमने 30,000 रुपए रिस्क फ्री में लगाए। वो 30,000 रुपए कहां से आए, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ना, सब में से 30 हमने डिडक्ट कर दिया, हमने सेल कर दिया। ए में से हमने 30% डिडक्ट किया,
बी में से किया और सी में से किया. दैट इज व्हाट से वी हैव डन. थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछा है कि कितना एडिशनल इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री में करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपका जो रिस्क है वो 1.015 हो जाए. तो अगेन वो 0.7 ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज वो इक्वेशन हमने फॉर्म किया है. बट दैट 0.7 इज रिप्रेजेंटिंग 1 लाख. सो 0.30 के सामने क्या होना चाहिए? 42,857. ये जो 42,857 जो है, so that is what we understand is the additional investment to be made in RF. So हमारा टोटल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,42,857. उसके हिसाब से वेट कैलकुलेट किया जाएगा और फिर वेटेड एवरेज. That is the way say you will be able to reduce the risk to 1.015. चौथा क्वेश्चन, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है. हमको बीटा 1.45 से 2.61 तक लेके जाना है. तो वो करने के लिए दो मेथड्स है. एक हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोरो कर सकते हैं आरएफ और उसको हम लोग एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो हमने अज्यूम किया कि एक्स अमाउंट बोरो करके उसको एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया. सो 1 लाख प्लस एक्स हो जाएगा एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का वेट और माइनस एक्स होगा आरएफ का वेट. ऐसा करके बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो हो जाएगा 2.61. सो वी फाउंड द इक्वेशन एंड वी फाउंड द आंसर टू बी 80,000 रुपीज. सो हमने क्या किया, 80,000 रुपीज बोरो किए, उसको 50-30-20 के प्रोपोर्शन में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके हमने बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो 2.61 कर दिया. ये वेरिफिकेशन बताने का जरूरत नहीं है. जो दूसरा ट्रांजैक्शन है उसमें हमने क्या किया फ्रेंड्स, उसमें हमारे पास जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था उसमें से 44,444 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हमने बेच दिया. किसमें से? ए बी सी 0.5, 0.3, 0.2 के प्रपोर्शन. ये जो पैसा हमने रियलाइज किया ना उसको अभी हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट ही उतना विड्रॉ कर दिया. फिर वही अमाउंट हमने बोरो किया और उसको हमने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में लगा दिया. यानी क्या हो गया फ्रेंड्स, देखो हमारा 50,000 रुपए का, 30,000 रुपए का और 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा ए बी और सी में. हमारा बोरोइंग होगा एट आरएफ 44,444. अकॉर्डिंगली हम लोग वेट कैलकुलेट करेंगे, बीटा इंटू वेट, ऐसा करके वेटेड एवरेज दैट इज बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो. अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है उसके लिए हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का अमाउंट हमने 1 लाख रुपए ही रखा. बोरोइंग ऑफ कोर्स नेगेटिव एक्स होगा और अमाउंट हेल्ड में हमने लिखा 1 लाख माइनस एक्स. क्यों? क्योंकि इस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी हम लोग फाइनेंसिंग कर रहे हैं ना से बोरोइंग से, टू दैट एक्सटेंट हमने हमारा इन्वेस्टमेंट विड्रॉ किया है. अकॉर्डिंगली द वेट्स आर कैलकुलेटेड एंड वेटेड एवरेज फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड. Again, the cross verification is only for understanding, and this is the way the beta can be reduced. Now, as a student, you may have a question that sir, ये beta reduce करने के लिए, beta increase करने के लिए, अगर कुछ नहीं दे रखा होता तो क्या करने का? जैसे कि सेकेंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, दोनों में हमारा रिस्क रिड्यूस हो रहा है. रिस्क रिडक्शन के लिए अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करने का? मेरे हिसाब से आप दोनों में से कोई भी एक मेथड करो एंड यू पुट अ नोट फॉर द सेम. फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में अगेन आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो एंड यू पुट अ नोट फॉर द सेम. आइदर ऑफ द वे से यू विल बी एबल टू इंक्रीज द रिस्क एज यू वांट.